Hello everybody, good morning to you all. I am Dr. Anu Bhai Soni, again being connected with you through this video session. Um, I have a pleasure to inform you that today I am going to open a discussion with you people on a very important matter of law. It is a law of crimes in India. Undoubtedly it is Indian Penal Code, very interesting, very important, very significant matter of law. Then there is a question, what is the Indian Penal Code and under what circumstances it was enacted, what is the historical background behind the enactment of this very important code, what is its important provisions, how many sections it contains. These are all very important matters which we'll have to discuss with you. One thing is very important according to my opinion, that this Indian Penal Code contains 511 sections according to the numbering of the section. We can say that we may say that we have under the Indian Penal Code we have 511 sections, but in fact the number of the provisions, the number of the sections are actually more than 511. But if we focus in numbering of the sections, we have exactly 511 sections. But some sections have A, B, C, D, H, I type additional provision, like 498 is an independent section, but 498A has also been added regarding the crime against the women also. So, in fact, according to the numbering, we have 511 sections, but in fact, we have more than 511 sections and provisions under the Indian Penal Code. Before talking on the various provisions of this Indian Penal Code, we must be careful regarding the certain crucial point, certain introductory, certain operational, extrajudicial, extraterritorial and intraterritorial operation of this code are also for your attention. So, firstly, I would like to draw your kind attention regarding the introductory matters of the Indian Penal Code, which includes the preamble of the code and section 1 to 5. It is these sections are very important to know what is the aim, what is the object of the code, what is the title of the code, what is the intra-territorial and extraterritorial operation of the code. आज हम भारतीय दंड संहिता पर चर्चा करने जा रहे हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये विषय है. और कानून की दुनिया में भारतीय दंड संहिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है और रुचिकर इसलिए है कि एक विधि का या कानून का विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एक सामान्य आदमी भी इस कानून के बारे में थोड़ी न थोड़ी जानकारी रखना चाहता है. इसलिए इसके विभिन्न पहलुओं पर क्रमबद्ध चर्चा किया जाना परम आवश्यक है. जैसे मैंने अभी पहले कहा कि इंडियन पेनल कोड के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जिन पर चर्चा साधारणतः कक्षाओं में या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जब हम किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हैं या किसी और ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो भी इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाती. एंड सच प्रोविजंस आर लेफ्ट अनटच्ड, लाइक सेक्शन 1
the title of the court, the operation of the court, the historical background of the regarding the enactment of the particular code. They are also very important matter which must be studied, which must be discussed. चूंकि आज से हम भारतीय दंड संहिता पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम उन ऐसे ही अनछुए बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू करेंगे जिन पर सामान्य रूप से चर्चा नहीं हो पाती है। तो इसमें सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जब भी हम किसी कानून को पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो इंडियन पेनल कोड हो चाहे और भी कोई कानून हो, तो हमें सबसे पहले उस कानून की प्रकृति को जानना चाहिए। वी मस्ट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, व्हाट टाइप ऑफ द एक्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर कोड और पर्टिकुलर इनैक्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द जूरिस्प्रूडेंस, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ लॉ, वी कैटेगराइज the law in two kinds, in two categories. One is the substantive law and the other is the procedural law. जब भी हम विधि शास्त्र की बात करते हैं, कानून के बारे में पढ़ते हैं, कानून क्या है, तो उसी में हम ये भी पढ़ते हैं कानून कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पर दो प्रकार विधि शास्त्र के मुताबिक हैं, जिसको अपन बोलते हैं वन इज द सब्सटेंटिव लॉ, सारभूत विधि, और दूसरे को बोलते हैं प्रक्रिया विधि। तो सारभूत विधि क्या है और प्रक्रिया विधि क्या है, और इंडियन पेनल कोड इन दोनों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। whether the Indian penal code is a substantive law or the procedural law. So before taking decision regarding this matter, we must know what is the exact meaning, definition and concept of the procedural law as well as the substantive law. भारतीय दंड संहिता एक सारभूत कानून है कि एक प्रक्रिया विधि है। इसको जानने के पहले हम ये तो जाने कि सारभूत विधि किसे कहते हैं और प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं, क्योंकि ये कानून की प्रकृति है। क्योंकि हम इंडियन पेनल कोड को पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, तो वी मस्ट हैव ए क्रिस्टल क्लियर विजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द इंडियन पेनल कोड, रिगार्डिंग नेचर ऑफ द इंडियन पेनल कोड, व्हाट टाइप ऑफ द लॉ इट इज, whether it is a procedural law or the substantive law. Then firstly we must know, we must have a crystal clear vision, what is the meaning of the substantive law. How can you decide that a particular law is a substantive law and particular law is a procedural law? तो पहले अपन इसी को तय करें कि सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं। तो सारभूत विधि या सारभूत कानून वो कानून है जो एक व्यक्ति के अधिकार और उसके दायित्व के बारे में प्रावधान करता है, या उसके अधिकार और दायित्व की स्थापना या उसके दायित्व की पूर्ति के बारे में, उसका दायित्व कब उत्पन्न होगा, उसका अधिकार कैसे उत्पन्न होगा, उस अधिकार की पूर्ति कैसे होगी, इस बात को बताता है। विच लॉ सेटल्स द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पर्सन इज नोन ए सब्सटेंटिव लॉ। जो कानून अधिकार एवं दायित्व की स्थापना के बारे में बात करता है कि एक व्यक्ति का क्या अधिकार होगा, किन परिस्थितियों में होगा, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का क्या दायित्व होगा और किन परिस्थितियों में होगा, ऐसा कानून सारभूत कानून कहलाता है, सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है। कुछ एक विद्वानों का मत ये भी है कि इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जो कानून एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट सेटल करता है, एक अल्टीमेट उद्देश्य की स्थापना करता है कि आखिर इस कानून को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, है ना, एक पर्टिकुलर एम, पर्टिकुलर टारगेट जो कानून फिक्स करता है ना, और जो कानून अधिकार एवं दायित्वों की स्थापना करता है, उसी को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। क्योंकि देखिए पूरा सिस्टम जो मानवता के, जो मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित हुआ है, और आज आपके सामने एक सुस्थापित, है ना, सुस्थापित न्यायपालिका के रूप में है, या विधायिका के रूप में है, या कार्यपालिका के रूप में है। ये जितने भी फोरम्स हैं, ये सब मनुष्य के अधिकार एवं दायित्व की स्थापना के लिए और उस अधिकार एवं दायित्व की
पूर्ति के लिए ही बनाए गए हैं, उसी के लिए संचालित है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, जैसे जैसे उसकी सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसने अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू किया, वैसे वैसे अधिकारों की स्थापना होने लगी। अब चूंकि एक व्यक्ति का अधिकार निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य से जुड़ा होता है। द राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर म्यूचुअली, दे आर रेसिप्रोकली रिलेटेड, कनेक्टेड टू ईच अदर। बिना कर्तव्य के अधिकार की बात नहीं हो सकती। और यदि आपके पास अधिकार है तो उस अधिकार की पूर्ति कैसे होगी? जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तब आपके अधिकार की पूर्ति होगी। यदि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार कर दे, इफ समवन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, देन द राइट विल नॉट बी फुलफिल्ड, राइट विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, नॉट बी ऑनर्ड। तो आपके अधिकारों की पूर्ति कैसे होगी? जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं, आपके पास अधिकार है, अधिकार के तहत आपने अपने क्लर्क को कोई सा काम सौंपा कि भाई ये काम आप करके शाम तक लाइए। इट्स योर राइट एज ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर ऑफिस। आपका क्लर्क रिफ्यूज करता है, नो नो मैं नहीं करूँगा, आई एम नॉट बाउंड टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ड्यूटी। whether it is a legal answer or not, it doesn't matter. Matter is that your right is not being honored. आपके अधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे उसकी पूर्ति नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि अधिकार की पूर्ति तभी होती है जब उससे जुड़े हुए कर्तव्य का पालन किया जाए, है ना। तो एक अधिकार कब उत्पन्न होता है ना, उसके प्रति कौन सा कर्तव्य जुड़ा है और उस कर्तव्य का पालन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो कर्तव्य किसका होगा, अधिकार किसका होगा, किन परिस्थितियों में इस प्रकार का अधिकार उत्पन्न होगा, किन परिस्थितियों में वो उस प्रकार के कर्तव्य उत्पन्न होंगे, है ना। इसकी जो व्याख्या करता है उसी कानून को हम सारभूत कानून कहते हैं। इसके साथ साथ वो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट भी सेट करता है, विच लॉ सेटल द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ। जो कानून उस कानून के उद्देश्य की बात करता है कि आखिर ये कानून क्यों अस्तित्व में आया, तो उसको भी, वो भी सब्स्टिट्यूटिव लॉ का एक बहुत बड़ा लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने देखा कि सारभूत कानून क्या है, जो अधिकार और दायित्वों की स्थापना करता है, जो उद्देश्य की बात करता है कि आखिर इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है, वही अंडर व्हाट ऑब्जेक्ट लेजिस्लेटर हैज इनेक्टेड दिस लॉ, दिस पर्टिकुलर लॉ। अब आए अपन प्रक्रिया विधि के बारे में। व्हाट इज द प्रोसीजरल लॉ? तो सो फॉर द प्रोसीजरल लॉ इज कंसर्न, जहां तक के प्रक्रिया विधि का प्रश्न है, ये जो सारभूत कानून जो जिस अधिकार और दायित्व की बात करता है, उन अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति किस प्रकार से होगी, वो अधिनियम अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करेगा, किस रास्ते से प्राप्त करेगा, किस प्रक्रिया से प्राप्त करेगा, उस प्रक्रिया को बताने वाला जो कानून है उसी को हम प्रक्रिया विधि कहते हैं, है ना। सारभूत कानून एक टारगेट फिक्स करता है, अधिकार और दायित्व की स्थापना करता है। आपको ये अधिकार है, आपका ये दायित्व है, बट अंडर व्हाट प्रोसीजर सच राइट विल बी इन्फोर्स्ड। किस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत वो अधिकार प्राप्त किए जाएंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया के चलते के अंतर्गत उस अधिकार से जुड़े हुए दायित्व का पालन होगा, कंप्लायंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, अंडर व्हाट प्रोसीजर द ड्यूटी विल बी परफॉर्म्ड, द राइट विल बी इन्फोर्स्ड। इसको कोई ना इसको भी तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा ना, वरना फिर लोग अधिकार का पालन किसी भी तरीके से कराएंगे और कर्तव्य के पालन का तरीका भी सुनिश्चित नहीं होगा। तो अधिकारों को लागू करने और उसके से जुड़े हुए कर्तव्य का पालन कैसे होगा, इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, सुस्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। तो उस प्रक्रिया को जो कानून स्थापित करता है, उस प्रक्रिया के बारे में जो कानून प्रावधान करता है, द लॉ विच प्रोवाइड्स द प्रोसीजर regarding the rights and duties, such law is called as a procedural law.
प्रक्रिया बताती होगी। इस प्रक्रिया से चल करके आप उस दायित्व की पूर्ति करेंगे और इस प्रक्रिया के चलते आप उस अधिकार को लागू करेंगे। जैसे इंडियन पेनल कोड, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड, व्हाट इज द substantive matter related to the Indian Penal Code? The Indian Penal Code provides the definition of the offense, definition of the crime, and it provides the value of the punishment also. दंड की बात करता है, अपराध की परिभाषा देता है। एक पर्टिकुलर कार्य को करने से आप कौन सा अपराध करेंगे और उसके लिए आपको क्या दंड मिलेगा। तो अपराधी को दंडित करना और एक कृत्य को, जो आप काम करते हैं, उसको अपराध घोषित करना, ये इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ ये कानून जो समाज है, जो सिस्टम है, जो रूल, जो गवर्नमेंट है, उसको पावर देता है कि आप अपराधी को दंडित करेंगे। न्यायालयों को अधिकार देता है कि आप इस कानून के अंतर्गत यदि किसने कोई कार्य किया है जो इसके अंतर्गत अपराध की परिभाषा में आता है, तो उसे दंडित करने का अधिकार शासन को, न्यायालय को होगा, और उस व्यक्ति का दायित्व होगा जो अपराधी ठहराया जाएगा कि वो दंड का पालन करे, वो दंडित हो, दंड भोगे, ये उसका कर्तव्य होगा। तो अधिकार और कर्तव्य को सेटल किया इसने। सो इट इज ए सब्स्टेंटिव लॉ। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? अपराध को परिभाषित करना और अपराधी को दंडित करना। इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सो इट इज ए सब्स्टेंटिव लॉ। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है, देयर इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन कि हाउ सच राइट्स ऑफ द जुडिशरी or the government regarding the offense, regarding the crime will be enforced against the accused। कैसे आखिर उसको आप लागू करेंगे? उसके लिए भी कुछ आपके पास नियम होना चाहिए ना, कि किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए, उसे दंडित करने के लिए, उसे सजा सुनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई ना कोई जुडिशियल फोरम होना चाहिए, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, है ना? तो इन सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी, है ना? ये प्रक्रिया विधि में है कि अदालतें किस प्रकार से अपना काम करेंगी, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करेगा, हाउ द पुलिस ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द केस, what will be the procedure of the judicial trial against the accused. Okay, so such type of the procedures are contained by the procedural law, and so far the criminal procedure code is concerned, it is a procedural law। ये जो क्या है साहब, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, वो अदालतों की प्रक्रिया बताती है, पुलिस की कार्यवाही की प्रक्रिया बताती है ना? तो इसलिए कि भाई इस प्रक्रिया के द्वारा एक अदालत जो है वो अभियुक्त का विचारण करेगी, आरोपी का, अपना आरोपी का है जिसके ऊपर चार्ज लगा है अपराध का, उसका विचारण करेगी इस प्रक्रिया से, और इस प्रक्रिया से बाहर नहीं जाएगी। हालांकि कुछ जगह पर उन्हें विवेकाधिकार डिस्क्रिशनरी पावर इज वेस्टेड टू दी कोर्ट, नो डाउट, बट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोसीजर इज वेल डिफाइंड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर, which must be followed by the court and other agencies connected with the trial। तो ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप एक आरोपी को या तो रिहा करते हैं या उसको दंडित करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि प्रक्रिया विधि क्या है। द CRPC इज ए प्रोसीजरल लॉ, सिमिलरली द इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ, क्योंकि ये जो विटनेस का कैसे आप एग्जामिनेशन करेंगे, and what facts will be treated as a relevant fact, what is the burden of proof, what are the types of the examination of the witness, these are all matter of the procedure, so it is a procedural law। तो हमने देखा कि what is the substantive law and how it is different from the procedural law, and so it is established that the Indian Penal Code is a substantive law। It is the nature of the Indian Penal Code that it is a substantive law, it is not a procedural law। So this is the very important issue, very important, the crucial point which must be under your attention and under your knowledge, must be under your concept, so you can have a crystal clear vision regarding the nature of the particular law। So the Indian Penal Code is a substantive law, it is not a procedural law, it is a codified law,
है ना, इट इज अ कोडिफाइड लॉ ऑफ क्राइम्स ऑफ इंडिया। ये बात हुई एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि हर कानून के साथ में एक सन जुड़ा होता है। इंडियन पेनल कोड के साथ जुड़ा है 1860, 1860। ये सन ये बताता है कि 1860 में इस कानून को बनाया गया। द इंडियन पेनल कोड वॉज इनेक्टेड इन 1860। इसमें एक नंबर भी होता है हर कानून के साथ देते। एक्ट नंबर 45, द इंडियन पेनल कोड हैज ए नंबर, द एक्ट नंबर 45, सो इट इज नोन एज ए एक्ट नंबर 45 ऑफ द 1860। इसके थोड़ा से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी अपन चर्चा कर लें कि कैसे अस्तित्व में आया। तो थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 1834 में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया। द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग 1834 अंडर द हेडशिप, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड टी.बी. मैकॉले। टी.बी. मैकॉले साहब की अध्यक्षता में सन 1834 में पहली विधि आयोग की स्थापना हुई और लॉर्ड मैकॉले साहब के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में इंडियन पेनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो 1837 में द ड्राफ्ट वाज सबमिटेड बिफोर द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मिस्टर ऑकलैंड। मिस्टर ऑकलैंड वाज chairman of the Central Legislative Council that time, and the draft was submitted by the Lord Macaulay of the Indian Penal Code before the Auckland during 1837. Mr. Thomas Wellington Macaulay के साथ में मिस्टर मिलेट, मिस्टर मैकलियोड एंड मिस्टर एंडरसन वगैरह भी थे। 1837 में इसको सबमिट करने के बावजूद इसमें थोड़े बहुत एक दो कमेटियां और बनी जिसमें थोड़ा बहुत और संशोधन किया, लेकिन इसका मूल स्वरूप ऐसा ही रहा। 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पारित किया। द इंडियन पेनल कोड वाज इनेक्टेड विद द वन कॉम्पिटेंट बॉडी, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग ऑन 6 अक्टूबर 1860। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 साल तक लागू नहीं हो पाया और 1 जनवरी 1862 को ये लागू किया गया। तो हाउएवर इट वाज इनेक्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन it was delayed and enforced, really actually enforced from 1st January 1862 in whole of the British India। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये भी हमको किसी भी एक्ट को, किसी भी कोड को पढ़ने से पहले जानना चाहिए। वी मस्ट हैव ए क्रिस्टल क्लियर concept regarding the historical evidence, historical background behind the enactment of the any act. So we can make a discussion before any forum, before any debate, before any interview board, that what about the circumstances, what was the reason behind the enactment of the not only the Indian Penal Code but any law. अब अपन आए इसके बाद, चूंकि आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लिया, आपको एक बात मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि इंडियन पेनल कोड जो है उसका उर्दू वर्सन या उसका उर्दू में जो नामकरण है वो मजमुआ ताजीरात हिंद कहा जाता है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी अदालतों में इस नाम का प्रयोग होता था। अब इसके उपयोग में थोड़ी सी कमी दिखती है, कमी आ गई है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, चूँकि आप इसको आज से अंत तक पढ़ना चाहते हैं। अपन इसमें एक डीप डिस्कशन करना चाहते हैं। हम इंडियन पेनल कोड के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर मैंने पहले कहा, जिन पर आमतौर से चर्चा नहीं हो पाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो उर्दू वर्सन है, उर्दू नामकरण है, उर्दू संस्करण में इसका जो टाइटल है वो कहलाता है ताजीरात हिंद। कई जगह ये मजमुआ ताजीरात हिंद कहा गया है। उसी प्रकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द CRPC, द दंड प्रक्रिया संहिता इज कंसर्न, इसे उर्दू में कहा जाता है जाब्ता फौजदारी। उसी प्रकार से सिविल प्रोसीजर कोड को कहा जाता है जाब्ता दीवानी।
और साक्ष्य विधि के बारे में भी सुन लीजिए। इसे कहा जाता है कानून शहादत हिंद। यदि ये आपकी जानकारी में है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद रखें, है ना। कभी कहीं पर इस तरह की चर्चा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमने बताया आपको कि इंडियन पेनल कोड इज नोन, इट वाज नोन एंड इट स्टिल इज नोन इन उर्दू वर्सन एज ए मजमुआ ताजरात हिंद, वेयर इज द वाइल द criminal procedure code known as a Jabta Fauzdari, the civil procedure code is known as a Jabta Diwani, and so for the Indian Evidence Act of the 1872 is concerned, it is known in Urdu as कानून शहादत हिंद। okay? तो ये हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा की और हमने इसके उर्दू नाम पर भी चर्चा की है। आगे चलें, थोड़ी सी चर्चा और करें अपन, जो है धारा 1 के संबंध में। कोई भी अधिनियम की जो धारा 1 होती है वो उस अधिनियम के नाम के बारे में, टाइटल के बारे में बताती है, उसके ऑपरेशन के बारे में बताती है। द टाइटल एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड is contained by the section 1. So what is the name of the act and what shall be the territorial operation of the code? It is well provided under the section 1 of the Indian Penal Code. क्षेत्राधिकार के बारे में बताती है, कहाँ लागू होगा और इसे किस नाम से जाना जाएगा। So now let us try to understand the contents of the section 1. What the section 1 says? धारा 1 क्या कहती है? This act shall be called as the Indian Penal Code and shall extend the whole of the India except Jammu and Kashmir. क्या कहती है धारा? कि भारतीय दंड संहिता, ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाएगा और ये संपूर्ण भारत में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ करके लागू होगा। वेरी क्लियर। इसमें जो संपूर्ण भारत जो लिखा ना, द होल ऑफ द इंडिया, पहले होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया था, उसे आज़ादी के बाद संशोधन के अंतर्गत उसमें से ब्रिटिश शब्द को डिलीट किया गया। द वर्ड ब्रिटिश वाज डिलीटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट, बाय द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट लॉ इन इंडियन पेनल कोड, और उसमें सिर्फ भारत शब्द को रखा गया। तो इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। भारत, पूरे भारत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ करके ये लागू होगा। इट इज ए provision of the section 1. So there is a two provisions, two important matter related with the section 1. Number 1 is what is the name of the code and what is the area of the operation of the code. तो नाम को आप जान गए कि what is the name of the code? The Indian Penal Code according to the section 1. उसका territorial operation क्या होता है? Whole of the India एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब आपका इंडियन पेनल कोड अस्तित्व में आया तब ब्रिटिश इंडिया था, बाद में वो इंडिया हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और जब भारत का संविधान बना ड्यूरिंग 1950 इट वाज इम्प्लीमेंटेड योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक अनुच्छेद 370 बनाया गया और उस अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 370 द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज गिवन ए स्पेशल स्टेटस। इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था और उस स्पेशल स्टेटस के तहत वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती थी, नहीं की गई, और वहाँ पर वहाँ की राज्य की अपनी दंड संहिता, इसको रणवीर दंड संहिता कहते थे, वो लागू होती थी। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2019 में एक नया एक्ट लाया गया, एक्ट नंबर 34 ऑफ द 2019, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, एक्ट नंबर 34। और इस कानून के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नाउ द जम्मू एंड कश्मीर
state has been divided into a union territory. One is the Jammu and Kashmir, that is the Ladakh. लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं और the provisions, the certain provisions which were related with the Jammu and Kashmir under Article 370 has been abolished, has been deleted. अनुच्छेद 370 के जो प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते थे वो सब समाप्त कर दिए गए. कब से? राइट फ्रॉम द 31 अक्टूबर 2019. 31/10/2019 से ये जो नया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्रमांक 34 अस्तित्व में आया. उसने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए और उसने अनुच्छेद 370 के उन प्रोविजन को समाप्त कर दिया जो कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित थे, जो उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते थे. Now the position is, now the latest situation is that your Indian Penal Code is imposed in whole of the India, including Jammu and Kashmir also. अब ये जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे देश में लागू होती है. ये एक नई बात है जो पहले नहीं थी. आपको इंडियन पेनल कोड की तमाम किताबों में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा मिलेगा. अब उसको आपको थोड़ा सा बदल के पढ़ना पड़ेगा कि अब उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी सम्मिलित है और वहाँ पर अब उनकी रणवीर दंड संहिता लागू नहीं होती. अब वहाँ पर आपके देश का जो कानून है भारतीय दंड संहिता लागू होता है. अनुच्छेद 370 अब निष्प्रभावी है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्पेसिफिक स्टेट का दर्जा देता. नो ये बातें हमने देखी. नाउ द सेक्शन 2, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच प्रोवाइड्स द इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड. धारा 2 जो है, आगे 3 और 4 को भी अपन देखेंगे, लेकिन धारा 2 है वो इस इंडियन पेनल कोड के अंतर क्षेत्रीय प्रवर्तन के बारे में बताती है. ये देश के भीतर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किस प्रकार से लागू होगा. व्हाट इज द इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड? इट इज नाइसली प्रोवाइडेड, नाइसली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पेनल कोड. These are very important matter for the study, for the discussion. मैंने पहले ही कहा है कि ये जो बातें हैं, ये जो प्रावधान हैं, इनके बारे में सामान्य रूप से चर्चा नहीं हो पाती है. और जब भी हम अपने क्लासरूम में इंडियन पेनल कोड को पढ़ाते हैं तो वो धारा 34 से शुरू करते हैं और फिर जंप कर करके पढ़ाते हैं. 34 के बाद एक्सेप्शन को पढ़ाते हैं. उसके बाद और जितनी पॉपुलर धाराएं हैं जिसको हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट मानते उसी पर चर्चा करते हैं. किसी भी खास करके इंडियन पेनल कोड को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए आपको इन प्रारंभिक जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस हैं, इंट्रोडक्टरी सेक्शंस हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. देन यू विल गेट द रियल फैक्ट्स रिगार्डिंग द इंडियन पेनल कोड. तो व्हाट द सेक्शन 2 सेज, धारा 2 क्या कहती है? एवरी पर्सन liable to punishment, every person liable to punishment under this code and not otherwise for his act and omission, for his act and omission contrary to provision thereof, of which he shall be guilty within India. प्रत्येक व्यक्ति, every person, not any person, kindly note it. The word every person has been used under section 2 of the Indian Penal Code. It has a specific meaning, जिस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे. So every person shall be liable to punishment under this code, not otherwise, for his act and omission contrary to the law, contrary to provisions thereof. The provisions under the Indian Penal Code, contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within the India. So what is, we have a three very important components under this particular section 2 regarding the intra-territorial operation of the code. Number 1, the every person. We have a 3 components, very important components for discussion under section 2. Number 1 is
every person. So what is the exact meaning of the every person? Number second, contrary to the law. What is the meaning of the contrary to the law? And thirdly, what is the exact meaning of the word within India? How can you say that a particular territory is within India or not? Within India, the word is very important to decide the territory, the maritime territory of the India. What act and omission will be treated as a contrary to the provision thereof? And what is the exact meaning of the every person? So the three components are very important to have a crystal clear meaning and concept regarding the section 2, according to my opinion. इन तीन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है. प्रत्येक व्यक्ति कंट्री टू दी प्रोविजंस देयरऑफ, इनके इसमें जो प्रावधानित है उसके विरुद्ध, और नंबर तीसरा विद इन इंडिया, भारत के भीतर. These three components are very important for discussion. So, since we don't have much time, we will later discuss on these three components in our next meeting. Thank you for patience hearing.